Welcome to CBR English. Good evening. A special program on Atal Bihar Vajpayee's birth centenary closure celebrations. Tonight we bring you a special in-depth biography of one of India's most respected political leaders, a man who combined poetry with politics, from nationalism with democratic values and statesmanship with humility, from the balance of Gwalior to the highest office of the land, from fiery parliamentary debates to the moments that reshape India's strategic destiny. This is the life and legacy of Atal Bihari Vajpayee, former Prime Minister, Freedom of Thought Champion and Bharat Ratna awardee. Atal Bihari Vajpayee was born on December 25, 1924 in Gwalior, in present-day Madhya Pradesh. His father, Krishna Bihari Vajpayee, was a school teacher and a poet, and his mother, Krishna Devi, played a formative role in shaping his disciplined upbringing. From an early age, Vajpayee showed a keen interest in literature, poetry, and public speaking talents that would later define his political career. He grew up during the freedom struggle, a time when nationalist ideas were deeply influencing young minds across India. Atal Bihari Vajpayee completed his schooling in Gwalior before pursuing higher education at Victoria College, now known as Maharani Lakshmibai College. He later earned a master's degree in political science from DAV College, Kanpur. During his student years, Vajpayee joined the Rashtriya Swayamsevak Sangh, the RSS, an organization that instilled in him discipline, nationalism and social commitment. However, unlike many contemporaries, Vajpayee would later evolve into a leader known for moderation, dialogue and consensus politics. कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमर आग है। लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं? तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए।
इसका छंद अलग है। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घृणय प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। कदम मिलाकर हास्य रुदन में, तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दी। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में, उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतियथ, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा। कदम मिलाकर चलना। इसका छंद अलग है। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। Atal Bihari Vajpayee formally entered politics in the early 1950s through the Bharatiya Janasangh, the political arm associated with the RSS, under the mentorship of Syama Prasad Mukherjee. Vajpayee quickly emerged as a promising young leader. In 1957, at just 32 years of age, he was elected to the Lok Sabha from Balrampur, marking the beginning of a parliamentary career that would span over 5 decades. His speeches in Parliament earned admiration even from ideological opponents, including Jawaharlal Nehru. Vajpayee soon gained national recognition for his exceptional oratory, a clarity of thought, and respectful debating style. At a time when politics was often a confrontational, Vajpayee stood out for his dignity and intellectual depth. Pandit Jawaharlal Nehru once famously remarked that Vajpayee was a leader who would one day become Prime Minister of India. By the 1960s and 70s, Vajpayee had established himself as one of the most articulate opposition leaders in Parliament. मैं आते जाते देखता था, नेहरू जी के साथ सदन में नोक झोंक भी हुआ करती थी। मैं नया था, पीछे बैठता था, कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वॉकआउट करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जगह बनाई, मैं आगे बढ़ा, और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा, ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। क्या इस भावना की कद्र है? क्या देश में ये भावना पनप है? ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे, और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आती थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है, और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए,
शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना, लोग बोलना बंद कर देंगे। क्या एक राष्ट्र के नाते हम मिलकर काम नहीं कर सकते? क्या एक राष्ट्र के नाते हम सब आने वाले संकटों का सामना नहीं कर सकते? एक शताब्दी खत्म हो रही है, दूसरी शताब्दी दरवाजे पर खड़ी है। अगर हमें छोड़कर आप कोई नया प्रयोग करना चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन हम जो प्रयोग कर रहे हैं उस प्रयोग को आप सफल होने दें, ये मैं आपसे अनुरोध जरूर करना चाहता हूं। जब जेनेवा में मानवाधिकारों के सम्मेलन में कश्मीर के सवाल को हमारे पड़ोसी ने उठाने का फैसला किया, तो फिर उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव की नजर मेरे ऊपर गई कि मैं वहां जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करूं। हमारे पड़ोसी देश के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां के नेताओं को बड़ा ताज्जुब हुआ। किसी नेता ने कहा भी कि भारत का लोकतंत्र विचित्र लोकतंत्र है कि प्रतिपक्ष का नेता अपनी सरकार के पक्ष को रखने के लिए जेनेवा जाता है, और एक हमारा प्रतिपक्ष का नेता है जो देश के भीतर ही ऐसी कठिनाइयां पैदा करता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाधाएं और उत्पन्न होती हैं। लोगों ने कहा कि नरसिंह राव जी सरल आदमी नहीं है, बड़े चतुर आदमी हैं। ये मत समझिए कि वो केवल देश की एकता का प्रदर्शन करने के लिए भेज रहे हैं। कहीं कहीं उनके मन में यह भी हो सकता है कि अगर जेनेवा में बात नहीं बनी और खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया तो दोष में हिस्सा बटाने के लिए वाजपेयी भी बलि का बकरा बनाया जा सकता है। मैं आते जाते देखता था नेहरू जी के साथ सदन। One of the most defining chapters of Atal Bihari Vajpayi's political life came during the emergency imposed by Prime Minister Indira Gandhi in 1975. Fundamental rights were suspended, opposition leaders were arrested, and democracy was curtailed. Vajpayee was arrested and jailed for opposing the emergency, a period he later described as one of India's darkest democratic moments. Despite ill health during imprisonment, Vajpayee remained firm in his commitment to democratic values. बिहारी वाजपेयी सभापति जी, हम एक राष्ट्रीय संकट की छाया में एकत्र हुए। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर युद्ध थोप दिया है। बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी की निरंतर सफलता से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए और इस भूखंड में अंतर्राष्ट्रीय दबाव को आमंत्रित करने के लिए पाकिस्तान ने हमारी सुरक्षा, अखंडता और हमारी स्वाधीनता को चुनौती दी है। ये एक चुनौती भी है और एक महान अवसर भी है। हम अग्नि परीक्षा में से गुजर रहे हैं। कोई कारण नहीं है हम इस अग्नि परीक्षा में से कुंदन बनकर न चमके। कोई कारण नहीं है हम अपनी सीमा की रक्षा करें और पाकिस्तान के शासकों को ऐसा पाठ पढ़ाएं जिससे वो जिंदगी भर न भूल सके। आज मैं पार्टी की ओर से बोलने के लिए तैयार नहीं हूं। अब तो सारा देश एक पार्टी है। राजनीति के मतभेद भुलाकर
छोटी छोटी चीजों को ताक पर रखकर सारे देश को कंधे से कंधा लगाकर और कदम से कदम मिलाकर विजय के लिए आगे बढ़ना होगा। यह संघर्ष जितने बलिदान की मांग करेगा वो बलिदान दिए जाएंगे। जितने अनुशासन का तकाजा होगा यह देश उतने अनुशासन का परिचय देगा। कोई कारण नहीं है कि हम इस संकट की घड़ी में उस राष्ट्रीय संकल्प का परिचय दें जो राष्ट्रीय संकल्प ऐसे अवसरों पर आवश्यक हुआ करता है। अध्यक्ष जी, आप मुझे क्षमा करें, कोई ये न कहे कि मैं भावनाओं को उभारना चाहता हूं। युद्ध है, अगर सीमा पर आक्रमण है तो देश की जनता को युद्ध के प्रयत्नों में जोड़ना होगा। हम उन्माद पैदा न करें मगर लोगों की देशभक्ति को जगाकर हर एक में यह भाव भरना होगा कि जो काम आप कर रहे हैं उसको ठीक तरह से करिए, मोर्चे पर खड़े रहिए। जवान सीमा के मोर्चे की चिंता करेंगे और हम घरेलू मोर्चे को संभालेंगे। किसी तरह का उपद्रव नहीं होने देंगे, किसी तरह की सांप्रदायिक अशांति पैदा नहीं होने देंगे। सभापति जी, माताएं जिस दिन के लिए बच्चों को जन्म देती हैं आज वो दिन आया है। बहनें जिस दिन के लिए भाइयों के हाथ में राखी बांधती हैं आज वो दिन आया है। और अगर पाकिस्तान समझता है धोखे से हमला करके वो हमें गफलत में पकड़ सकता है तो ये पाकिस्तान की भूल है। दुनिया ने देख लिया हमलावर कौन है और अब हमलावर को हमारे जवान मुंह तोड़ उत्तर दे रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इतिहास को बदलने की इस घड़ी का दायित्व जिनके हाथों में और प्रधानमंत्री इस संकट की घड़ी में देश को नेतृत्व देने के लिए सामने आ रही हैं। हम चाहते हैं ये देश विजयी हो और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम एक नए इतिहास का निर्माण करने में मैं चाहता अध्यक्ष जी, इस आक्रमण के काल में ये पार्लियामेंट या खा के खिलाफ एक हथियार के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। पाकिस्तान में पार्लियामेंट नहीं है, पाकिस्तान की सरकार को जनता का समर्थन नहीं है। यहां जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं और दुनिया देख रही है, आगे भी देखेगी कि इस देश में संकट की घड़ी में एक होकर और प्रत्युत्तर देने का सामर्थ्य। After the emergency ended, the opposition united to form the Janata Party, which swept the 1977 elections. Atal Bihari Vajpayee became India's Minister for External Affairs in the Morarji Desai government. As Foreign Minister, he made history by addressing the United Nations General Assembly in Hindi, asserting India's linguistic and cultural pride on the global stage. His tenure strengthened India's diplomatic standing and reflected his belief in peaceful coexistence. इसका छंद अलग है, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घिरने फिरने की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे फिरने की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दी। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में, उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, पूत प्यार में। In 1980, following the collapse of the Janata Party, Vajpayee co-founded the Bharatiya Janata Party (BJP). In its early years, the BJP struggled electorally, but Vajpayee remained its most acceptable and moderate face. He served as leader of the opposition in the Lok Sabha.
consistently raising national issues while maintaining parliamentary decorum. His leadership helped the BJP expand beyond ideological boundaries into a national political force. प्लासी की लड़ाई में जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लड़ाई का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देश के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था, मगर उस निर्णय में सारा देश शामिल नहीं था। विदेश मंत्री के नाते मैं अफगानिस्तान गया था। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूं, गजनी। पहले मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई, कहने लगे गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, गजनी में कोई 5 स्टार होटल नहीं है, गजनी में आप जाकर क्या करेंगे, गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे। मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता था। मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है। जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पढ़ी है, मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान। In 1996, Atal Bihari Vajpayee was sworn in as Prime Minister of India for the first time. However, lacking majority support, his government lasted just 13 days. Yet his speech during the confidence motion remains historic, where he spoke with conviction, dignity and faith in democratic processes. It marked Vajpayee as a leader willing to accept defeat gracefully. Vajpayee returned as Prime Minister in 1998, this time leading the National Democratic Alliance (NDA). He became India's first non-Congress Prime Minister to complete a full term. His government focused on infrastructure, economic reforms, governance stability and national security. Under his leadership, coalition politics matured in India. सभापति जी, हम एक राष्ट्रीय संकट की छाया में एकत्र हुए। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर युद्ध थोप दिया है। बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी की निरंतर सफलता से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए और इस भूखंड में अंतर्राष्ट्रीय दबाव को आमंत्रित करने के लिए पाकिस्तान ने हमारी सुरक्षा, अखंडता और हमारी स्वाधीनता को चुनौती दी है। ये एक चुनौती भी है और एक महान अवसर भी है। हम अग्नि परीक्षा में से गुजर रहे हैं। कोई कारण नहीं है हम इस अग्नि परीक्षा में से कुंदन बनकर न चमके। कोई कारण नहीं है हम अपनी सीमा की रक्षा करें और पाकिस्तान के शासकों को ऐसा पाठ पढ़ाएं जिससे वो जिंदगी भर न भूल सके। आज मैं पार्टी की ओर से बोलने के लिए तैयार नहीं हूं। अब तो सारा देश एक पार्टी है। राजनीति के मतभेद भुलाकर, छोटी छोटी चीजों को ताक पर रखकर सारे देश को कंधे से कंधा लगाकर और कदम से कदम मिलाकर विजय के लिए आगे बढ़ना होगा। यह संघर्ष जितने बलिदान की मांग करेगा वो बलिदान दिए जाएंगे। जितने अनुशासन का तकाजा होगा यह देश उतने अनुशासन का परिचय देगा। कोई कारण नहीं है कि हम
इस संकट की घड़ी में उस राष्ट्रीय संकल्प का परिचय दें जो राष्ट्रीय संकल्प ऐसे अवसरों पर आवश्यक हुआ करता है. One of Vajpayee's most decisive moments came in May 1998 when India conducted the Pokhran 2 nuclear tests. The test formally established India as a nuclear weapons state. Despite international sanctions and criticism, Vajpayee defended India's right to self-defense while simultaneously advocating global nuclear disarmament. It was a bold assertion of India's strategic autonomy. May 11th, 1998. India detonated test nuclear weapons underneath the shiny sands of the Thar. Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low-yield device, and a thermonuclear device. The tests were conducted in a clandestine manner, without the nuclear hab's world knowing. The test data analyzed by our scientists and others the world over confirmed the test's success. DRDO and DAE have effectively and efficiently coordinated and integrated their respective technological strengths in the national mission to confront the country with the capability to vacate the nuclear threats. अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया है. The nuclear habs countries had always kept a close vigil on the have-nots to ensure a moratorium on such tests. But the decision of Atalji to conduct the tests not only gave the country the long-sought nuclear deterrence, but his foresightedness also opened new opportunities later on for nuclear energy cooperation with many countries. Atal Bihari Vajpayee's dream has been to see a strong country with stronger deterrence. During his stint as Prime Minister for 13 days, he realized that the window of time was not much for the effective conduct of such an important test. When he came back to power on the 18th of March 1998, he gave the go-ahead to the scientists. There was a lot of pressure, geopolitical pressure. But he took a decision. India will go ahead with the test. To DRDO team and more importantly, atomic energy team. Okay, these two teams, they were myself and Dr. Chidambaram. We met him. He said, go ahead for the nuclear tests. Vajpayee was responsible for transforming India a nuclear weapon state. परीक्षण के साथ हमने ये भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे. नो फर्स्ट यूज. हमने ये भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है, हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे. Atalji's government in 1998 was a coalition government of 13 parties. Besides Vajpayee, L.K. Advani, Defence Minister George Fernandes, Pramod Mahajan, Jaswant Singh, Yashwant Sinha had known about the decision to conduct the tests. Brajesh Mishra, the then Principal Secretary of the Prime Minister, was given the coordination work with the scientists. The work started with much caution after the go-ahead from Atalji. The construction work generally took place in the night to evade the lenses of American satellites.
The project was given the code name Operation Shakti. Scientists working in the operation never traveled together. They would wear military clothes and had code names. Former President APJ Abdul Kalam had the code name Major General Prithviraj, whereas R. Chidambaram's code name was Nataraj. 58th Engineers Regiment of Army had given its full support to completing the groundwork. Finally, the moment of reckoning approached. At 3:45 p.m., the first bomb was detonated. The country had conducted its first nuclear test, code named Smiling Buddha, in 1974 under Prime Minister Indira Gandhi. However, that test was officially described as a peaceful nuclear explosion. For over 2 decades after that, India maintained a position of strategic ambiguity, facing increasing security challenges in a nuclearizer neighborhood, with China testing nuclear weapons in 1964 and Pakistan advancing its own nuclear program by the 1990s. When Atal Bihari Vajpayee assumed office in 1998, he inherited a complex strategic environment marked by regional instability, nuclear proliferation, and global power imbalances. The global reaction was swift and intense. The United States, Japan, and several Western nations imposed economic and technological sanctions on India. There was widespread international concern over nuclear proliferation in South Asia. Yet Vajpayee chose dialogue over defiance in a historic move. He wrote a detailed letter to U.S. President Bill Clinton explaining India's security compulsions and strategic rationale. This letter later became a cornerstone in reshaping India-US relations. मुझे आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है। कोई छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। अध्यक्ष महोदय, परमाणु परीक्षण के बारे में श्री चंद्रशेखर जी ने कुछ विचार व्यक्त किए। मुझे खेद है कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकता। उनके चिंतन की एक विशिष्ट धारा है। लेकिन 50 साल का हमारा अनुभव क्या बताता है? क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? केवल एक पड़ोसी नहीं, हमारे अनेक पड़ोसी हैं।
इस समय यूरोप में क्या हो रहा है वो एक चेतावनी है। पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए। वो क्रेडिबल भी होना चाहिए। इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। उसके कारण कुछ कठिनाइयां आएंगी, हमें मालूम था, लेकिन देश उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करेगा, यह भी हमको विश्वास था और ऐसा ही हुआ। आर्थिक प्रतिबंध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके, रक्षा संबंधी फैसले करने से हमें विरत नहीं कर सके, लेकिन परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। हमने यह भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है, हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। In 1999, India faced a major security challenge when Pakistani forces infiltrated Indian territory in Kargil, Jammu and Kashmir. As Prime Minister Vajpayee led the nation during the Kargil war, Indian armed forces successfully reclaimed strategic positions without crossing the line of control, a move that earned global appreciation. Vajpayee balanced military resolve with diplomatic restraint. करने वाले हैं क्या? हेलो ही करते हैं। अटल जी दिस साइड। इसके 3 किलोमीटर डाउन था, इसके बीच में 3 किलोमीटर नीचे। एक मिनट आएगा, सबका आएगा हमारा। अरे क्यों नहीं आएगा, हमारे लिए तो यहाँ तक आए गुरु। हम सही जगह खड़े होंगे। My feelings are that I'm satisfied with the decision that we took. I'm satisfied in the manner in which the decision was implemented by our scientists, engineers, and by the personnel of the Army and the Air Force who are involved in it. I'm satisfied with the results as we see them on the ground here and elsewhere in this Pokhran region. अटल बिहारी हमसे बात करो। माननीय प्रधानमंत्री से बातचीत करनी। अटल बिहारी जैसा हो।
ये वाला आपको पॉइंट साढ़े वो आउटपुट लगा छोड़ यार बहुत दूर हो जाएगा। In April 1999, Vajpayee's government faced a no-confidence motion in Parliament. In a dramatic moment, the NDA government lost the vote by just one vote. Once again, Vajpayee addressed the House with a composure, stating that numbers may decide governments, but not national interest. Fresh elections followed, returning Vajpayee to power later that day. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें इसका छंद अलग है। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दी। हास्य रुदन में तूफानों में अमर असंख्यक बलि। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। The year was 1996. On the 16th of May, BJP leader Atal Bihari Vajpayee took oath as the Prime Minister, but had to resign only 13 days later after he failed to get the majority in the Lok Sabha. In his reply during the no-confidence motion, Vajpayee tore into the Congress, accusing them of resorting to sinister moves to overthrow his government. And it remains one of the most historic speeches delivered on the floor of the House. कल से लेकर आज तक बोलते रहे, अब मेरी बारी आई है, अब मेरी बारी आई है तो ये मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं, ये होने वाला नहीं है। और अगर संख्या बल के आधार पर ये करने का आप प्रयास करेंगे तो हमें सदन के बाहर ये विचारों की लड़ाई ले जाना पड़ेगी। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता, वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्या ये आज के वातावरण में कठिन काम नहीं हो गया है? ये चर्चा तो आज समाप्त हो जाएगी, मगर कल से जो अध्याय शुरू होगा उस अध्याय पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। ये कटुता बढ़ना नहीं चाहिए। हमारा जनाधार नहीं है,
हमें लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है। अगर आप हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हर बात के लिए आपको कांग्रेस के पास दौड़ना पड़ेगा और जब आप उन पर निर्भर हो जाएंगे, अभी तो मैं नहीं जानता, पहले चर्चा हुई थी, कुछ शर्तें लगाई जा रही, फिर चर्चा हुई कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी। फ्लोर पर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बिना तो सदन नहीं चलता। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। Vajpayee's second full term focused on development initiatives like the Golden Quadrilateral Highway project, telecom expansion and economic liberalization. He also pursued peace initiatives with Pakistan, including the historic Lahore Bus Yatra. Though not all initiatives succeeded, Vajpayee's intent for peace remained consistent. After the 2004 elections, Vajpayee gradually withdrew from active politics due to declining health. He suffered a stroke that affected his speech and mobility. Despite political retirement, he remained a towering moral figure in Indian public life. ये आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है, कोई छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। अध्यक्ष महोदय, परमाणु परीक्षण के बारे में श्री चंद्रशेखर जी ने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। मुझे खेद है कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकता। उनके चिंतन की एक विशिष्ट धारा है। लेकिन 50 साल का हमारा अनुभव क्या बताता है? क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? Vajpayee publicly supported Modi during difficult periods, including the aftermath of the 2002 Gujarat riots, even as the government faced intense scrutiny. While Vajpayee famously spoke about the principle of Raj Dharma, he did not withdraw institutional backing from Modi, allowing democratic and constitutional processes to take their course. This balance between moral guidance and political stability reflected Vajpayee's statesmanship. चीफ मिनिस्टर के लिए
मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म, ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। In 2015, Atal Bihari Vajpayee was awarded India's highest civilian honor, the Bharat Ratna. It was recognition of the lifetime dedicated to public service, democracy and national unity. Atal Bihari Vajpayee passed away on August 16, 2018. At the age of 93 in New Delhi, the nation mourned the loss of a statesman who rose above partisan politics. Poet, parliamentarian, Prime Minister. Atal Bihari Vajpayee's legacy is not defined by power alone, but by grace in politics, respect for democracy and faith in dialogue. In an era of sharp divisions, Vajpayee remains a reminder that leadership can be firm yet human. That was our special story on Atal Bihari Vajpayee. Good night. प्लासी की लड़ाई में जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे, उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लड़ाई का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देश के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था, मगर उस निर्णय में सारा देश शामिल नहीं था। विदेश मंत्री के नाते मैं अफगानिस्तान गया था। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूं, गजनी। पहले वो मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई, कहने लगे गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, गजनी में कोई 5 स्टार होटल नहीं है, गजनी में आप जाकर क्या करेंगे, गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे। मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता था। मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है। जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पढ़ी है, मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं है। गजनी छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव है। कल्पना करिए, सैकड़ों साल पहले वहां धूल उड़ती थी, झोंपड़ियां थी, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। हमने उन्हें हथियार नहीं उठाने दिए। मार्शल नॉन मार्शल के आधार पर हमने समाज को बांट दिया। वो लुटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया, पुजारी देखते रहे,
मंदिर की पूजा भक्तों को करना पड़ती है। मंदिर तो एक प्रेरणा का केंद्र है। विश्वास किसमें है यह बड़ी बात नहीं है, विश्वास है या नहीं। हमने समाज के बहुत से बड़े वर्ग को विश्वासहीन बना दिया। लोगों ने हथियार नहीं उठाए, वेद पढ़ने के दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए हम पादाक्रांत हुए। अफगानिस्तान में मैंने एक बात और देखी। मुझे जिस होटल में ठहराया गया उसका नाम था कनिष्क। अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा कनिष्क यहां कहां से आया। तो मेरे साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे। मैंने कहा कनिष्क आपका कौन लगता है, कनिष्क से आपका क्या संबंध है। कहने लगे कनिष्क हमारा पूर्वज है, कनिष्क हमारा पुरखा है। ही वॉज वन ऑफ आवर फोर फादर्स। मैंने कहा तब तो हमारे आपके पुरखे एक हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने उपासना पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं बदली। आज के भारत के परिवेश में यह सुनने के बाद थोड़ा विचित्र लगता है। हमारे यहां तो धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होता है, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। पड़ोसी देशों में ऐसा नहीं हुआ। अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। This is the today big story. Stay tuned. CVR English News.